ویلکم بیک ناظرین آئی سندھ رفیق مختار صاحب کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے اوپر ایک اہم اجلاس ہوا ہے جن کی صدارت کی ہے۔ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے، کیا اقدام کیے جائیں، ساتھ ساتھ افسران کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے۔ اسٹریٹ کرائم ایک بار پھر جو ہے وہ اس اجلاس کے اندر بھی زیر غور آیا ہے معاملہ۔ اس حوالے سے چیف کرائم رپورٹر ہیں اسد زیدی صاحب، ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ اس اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے، اور مزید شہری ان اجلاس کو ہی دیکھتے رہیں گے، خبریں اس کی سنتے رہیں گے، یا اس کے نتائج بھی وہ اس سے بھی فیضیاب ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ اسد صاحب، تھوڑی تفصیلات تو بتائیں آج کی اجلاس کے حوالے سے۔ اسد صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آج ایک بہت اہم اجلاس کراچی میں ہوا جس کے اندر سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی سندھ نے اجلاس کی صدارت کی، اور اس اجلاس میں کراچی شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی اور محل وقوع کے لحاظ سے جو ہے نئے تھانوں کے قیام کی سفارشات ترتیب دی گئی، جرائم میں ملوث تارکین وطن کے عارضی اجازت نامے منسوخ کروائے جائیں، اس کی بات کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کی زیر صدارت جو کراچی میں امن و امان کی صورتحال سے پر جو اجلاس ہوا، اس میں آئی جی سندھ کا کہنا یہ تھا کہ اسٹریٹ کرمنلز دوران ڈکیتی قتل و زخمی کیے جانے والے واقعات اور ان پر مشتمل جو رپورٹ ہے وہ پیش کی جائیں، اور پولیس کی کارکردگی پر بھی اجلاس بلائے جائیں جس کے اندر زونل ڈی آئی جیز بھی اپنی اپنی رپورٹس پیش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اجلاس میں اسٹریٹ کرمنلز کی گرفتاریوں سمیت عادی مجرمان، نئے جرائم پیشہ عناصر، منشیات کرنے والے کرمنلز اور ضمانتوں پر رہائی پانے والے اور جیلوں میں قید ایسے مجرمان کے خلاف پولیس اقدامات اور لائحہ عمل پر بھی تفصیلی تبادلہ اسد زیدی صاحب، ہم نے یہ بار بار سنا ہے کہ جی عادی مجرمان کے حوالے سے، ملزمان کے حوالے سے جو بار بار ضمانتوں پہ رہا ہو جاتے ہیں اور پھر آ کے شہریوں کو لوٹتے دکھائی دیتے ہیں، ہم نے متعدد بار یہ بات سنی ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرانکس گیجٹس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، پھر اس کی تفتیش کے معاملات کو بڑے سنجیدہ طریقے سے دیکھا جائے گا۔ اس اجلاس کے بعد بھی یہ صورتحال سامنے بہتر دکھے گی، کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیے، اجلاس تو بالکل اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں، اور ایس ایس پی لیول پہ ہو یا زونل ڈی آئی جیز کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور پھر آئی جی سندھ بھی کرتے دکھائی دیے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ اجلاس تو ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی تمام باتیں ریپیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن کراچی شہر میں جو ڈکیتوں کی کھلے گھومنے کی جو واقعات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ کس آسانی سے آتے ہیں، لوگوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، کس آسانی سے ڈکیتیاں کرتے ہیں، اور پھر بغیر کسی ہیل اور حجت کے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں عام شہریوں کو اور نکل جاتے ہیں۔ اگر ہم حالیہ کچھ دنوں کی بات کر لیں تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کرنگی کے اندر ایک بہت بڑے عادی مجرم کو پولیس مقابلہ ہوا اور اس کے اندر وہ جاں بحق ہوا۔ اسی طریقے سے مزید علاقوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کراچی شہر کی بات کریں تو دو بھائیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ٹارگٹ کرنے والے کے بارے میں جو اطلاعات آتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان سے آتے ہیں، اپنے ڈکیت بھائی کی موت کا بدلہ لیتے ہیں، اور پھر بڑی آسانی دو بھائیوں کو ٹارگٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بھی واقعات اس شہر میں رونما ہو رہے ہیں، جس کے لیے ادارے سر جوڑ کر ضرور بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اہم بات یہ ہے علی رضا کہ کہا جاتا ہے کہ کراچی شہر کے اندر نفری کی بڑی کمی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی خوشائند بات کی گئی۔ 25,000 کے قریب آج بتایا گیا کہ لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا، جس سے ایک طرف تو یہ جو نفری کی کمی ہے وہ پوری کی جائے گی، اور دوسری طرف روزگار کے مواقع بھی ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین بات یہ ہے کہ کیوں یہ جن علاقوں کے اندر ایس ایچ اوز ایک علاقے میں ایک عرصے سے بیٹھے ہیں اور وہاں پر متواتر واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو ہٹایا نہیں جا رہا۔ اچھا صاحب، ایک اور بھی معاملہ ہے، شاکر عمر گجر صاحب آئے تھے ہمارے پاس، وہ کہہ رہے ہیں جی بہت سارے تجارتی مراکز ہیں، وہاں پر ایک تھانہ ہے اور اس کی حدود بہت بڑی ہے اور اس کو قابو نہیں کیا جا رہا، نفری مطلب تو تھانوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو مطلب صورتحال ان پالیسی سے کچھ بہتر بن سکے گی؟
देखिए, पहले मॉडल थाने बनाए गए अली रजा, जिसके अंदर दो दो थानों को मर्ज किया गया और ये कहा गया कि ये मॉडल थाने और इससे बेहतरी आएगी। लेकिन हमने देखा कि बेहतरी नहीं आ पाई, तो फिर वो मॉडल थानों का स्ट्रक्चर दोबारा तब्दील किया गया। अब आज के इजलास में ये कहा गया कि जो इलाके, वो थाने जिनके इलाके बहुत बड़े, वहां पर नए थाने कायम किए जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है जिसके ऊपर मुतवातिर बात की जाती है कि चौकियां जो कायम की जा रही है, चौकियों की रिपोर्ट्स क्या है? क्या चौकियां अपने इलाकों के अंदर, देखिए चौकी इंचार्ज बिठा दिए गए, क्या चौकी इंचार्ज अपने इलाकों के अंदर क्राइम को कंट्रोल करने में मौसर इकदाम कर रहे हैं? क्या स्नैप चेकिंग हो रही है? और क्या पीक आवर्स में पुलिस हमें रोडों पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है? ऐसे बहुत से सवालात हैं। अगर आप कराची शहर में ही बात कर लें तो एक दफा फिर हमने पहले भी कहा था कि सीपीएलसी का किरदार जो है बहुत अहम है। कैमरे लगाए जाएंगे, कैमरे ठीक किए जाएंगे, और कम्युनिटी पुलिसिंग की जाएगी। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात के बावजूद कराची शहर के अंदर इस तरह का कोई इकदाम हमें होता दिखाई नहीं देता। अब भी बात की जा रही है कि जिला कोरंगी में जो है कैमरे लगाए जाएंगे इसके दाखिली और खारजी रास्तों पर, जिस तरीके से साउथ में लगाए गए हैं। अगर इस तरह का अमल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएगा तो उससे कम देखिए जुर्म नहीं रुकता, लेकिन जुर्म करने वालों को रोकना होता है। तो जुर्म करने वालों को रोकने में मदद मिलेगी, अफसरान की तब्दीली, और फिर इन्वेस्टिगेशन में भी आज हमने देखा कि तब्दीली की गई अफसरान की। एक तरफ अफसरान जो ऑपरेशन पुलिस में, और दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन पुलिस का देखिए किरदार होता है। ऑपरेशन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, अपना काम कर दिया। अब जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उसका काम है कि वो मगर फिर तफ्तीश के ऊपर तो हर दफा असद ज़ैदी साहब सवाल उठते हैं कि कैसे जमानतें हो जाती है मुल्जिमान की, कैसे इतनी आराम से शवाहिद इकट्ठे नहीं हो पाते, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। अभी एक सीसीटीवी फुटेज सरफेस कर रही थी, इस तमाम चीज़ होने के बाद फिर वो साहब पता चला जी मुल्जिम जमानत लेकर बाहर आ गए हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन को किस तरह बेहतर बनाया जाएगा? क्या कर रहे हैं पुलिस के आला अफसरान इसके ऊपर, किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे? जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि एक दफा फिर से नई हुकूमत आ गई, इलेक्शन से जो है माहौल इलेक्शन का तब्दील हो गया और जिम्मेदारान ने, मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब तो नए चीफ सेक्रेटरी सिंध हो या फिर जिया लंजार जो कि, अच्छा, लंजार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें भी स्ट्रीट क्राइम का जिक्र एक बार फिर जो है वो सामने आया और उन्होंने कहा जी इसके ऊपर बड़ा संजीदा है हम। देखिए, संजीदा होना और उन पे अमल कराने में बहुत फर्क है। एक बात है कि अमल कैसे होगा, अमल के लिए फिर आपको हिकमत अमली बनाना पड़ेगी, फिर आपको उसी अंदाज से, आप पहले भी हम सुनते रहे, अब भी सुन रहे हैं कि मुजरिमान का पीछा कर रहे हैं, लेकिन इस बात में जो आप देख लिए कराची के जो पुलिस चीफ हैं खादिम हुसैन रिंद, उनका जो इस वक्त का किरदार है वो मैं ये कहूंगा कि काबिल तहसीन है। उसकी वजह यह है कि बहुत से मुल्जिमान को हम देख रहे हैं, आपके पुलिस मुकाबले हो रहे हैं और मुतवातिर पुलिस का मोराल अप हो रहा है। इससे पहले हम देख रहे थे कि कोई पुलिस मुकाबला हुआ, उल्टा पुलिस ही बंद हो गई और ये साबित करने में वो नाकाम रहे कि ये मुकाबला सच्चा था या नहीं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसके तहत एक अच्छा इकदाम ये हो रहा है कि जो मुकाबले हो रहे हैं वो दुनिया भी देख रही है, क्योंकि ये दिन दिहाड़े भी हो रहे हैं और फिर लोगों की मौजूदगी में भी हम देख रहे हैं कि पुलिस मुतहरिक है। लेकिन शाहीन फोर्स, उसके साथ साथ जितनी भी रैपिड रिस्पांस फोर्स, जितनी भी फोर्सेस हैं, ये हमें कहीं गायब दिखाई देती हैं। एक दफा दोबारा से चीज़ों को देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी साहब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज अहम सिंध की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ है, दीगर अफसरान भी मौजूद थे नाज़रीन, और उसमें बात एक बार फिर हुई है कि किस तरह काबू किया जाए, किस तरह हिकमत अमली बनाई जाए, किस तरह मौसर इक़दाम उठाए जाएँ ताकि ताजरों को, शहरियों को उनके मसाइल का हल जो है वो मिल सके। असद ज़ैदी चीफ रिपोर्टर थे, हमें बता रहे थे कि किस तरह सूरत हाल जो है वो बेहतर बनानी चाहिए और किस तरह बन सकती है, और साथ साथ इजलास की अंदरूनी कहानी की भी बता रहे थे कि क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई। और एक ओवरऑल नाजरीन बहुत सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। हम बार बार ये वाली बात कह रहे हैं कि तस्वीर दे दो, कौन लूट के जा रहा है, कौन इस शहर के लोगों को मार के जा रहा है, उसकी तस्वीर दे दो, और एक जाल बिछाया जा रहा है। और उस हवाले से बार बार एक बात सामने आती है कि जी सेफ सिटी प्रोजेक्ट की हम अक्सर बात करते हैं कि वो कब नाफिजुल अमल होगा, उसके जो बेहतर मुस्बत असरात हैं जिस तरह पाकिस्तान के दीगर शहरों में हैं और मरतब हो रहे हैं कि अब फ़िज़िकल तौर पर पुलिस अफसरान के बजाय कैमरे की
मदद से लोग जो हैं और अफसरान जो है महकमे जो हैं वो कारआमद बना रहे हैं सूरत हाल को। जराइम की दुनिया को किस तरह काबू किया जाए, किस तरह मुलजमान, क्योंकि एक बड़ा हब है। देखिए बार बार एक बात कही जाती है कि इस्लामाबाद में पॉलिटिकल एलीट मौजूद है, जिसको जहाँ पर आपने एक सेफ सिटी को दिया हुआ है, मगर इस मुल्क को चलाने के लिए इस शहर की बात की जाती है कि ये चलाता है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ से मईशत का ताल्लुक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने की बातें की जाती हैं, जहाँ बोला जाता है, कहा जाता है कि ये कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो इतने इंपॉर्टेंट शहर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नाफिजुल अमल नहीं हो रहा, जिससे मुल्क को चलना है, जिससे तरक्की आनी है, जिससे पैसा का जो सिलसिला है वो चलना है और पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल की जो बेहतरी है उसको देखना है। और उसी हवाले से जो है वो हम कोशिश कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि किस तरह सूरत हाल को के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाए, किस तरह क्या मामलात हैं जिसके ऊपर जो है वो बातचीत की जाए। हमारी कोशिश थी कि असद ज़ैदी से लें और अंदरूनी कहानी जो है वो जान सकें, जिसके ऊपर हम बात भी कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि एक और स्टोरी है नाज़रीन जिसके ऊपर बात करना इंतहाई अहम है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो भी सरफेस हुई है। हम कोशिश करेंगे कि अपने रिपोर्टर से जो है वो रब्ता करें, ताकि नॉर्थ नाज़ाबाद की एक स्टोरी है जिसके ऊपर जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पे दो बहन भाई थे जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि जी वो आयान और अनाबिया, उनको नामालूम अफराद ने जो है वो मुबैना तौर पे अगवा कर लिया। उसके बाद वो फिर मिल गए थे और मिलने के बाद जो है वो सूरत हाल क्या बनी, उस हवाले से जो है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जिसके ऊपर जो है सूरत हाल के हवाले से कि किस तरह जो है मामला जो है वो बना, और इसके ऊपर जो वो मामला है उसके ऊपर डिस्कशन करनी ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है एक बहुत ही एकदम से जब सोशल मीडिया पे चीज़ जो है वो सरफेस होना शुरू हुई कि जी अगवा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पे जो है वो सरफेस कर रही थी वीडियोस और तस्वीरें बच्चों की। फिर बाद में पता चला कि जी वो मिल गए हैं। उसके बाद भी एक मामला जो है वो डिबेट का हिस्सा बना रहा कि आया क्या किया जाए। उसके बाद बयान आया कि जी बच्चे मिल गए हैं, बच्चों को जो है कोई शख्स छोड़ कर चला गया था। उसके बाद दो इसके ऊपर जो है वो मामला आया है। नाज़रीन ब्रेक पे जाने इसके ऊपर फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया यार।